Hi class, we will be talking about thinking. Thinking is the third element in the process of discussing the cognitive processes. We have talked about perception, we have talked about learning. Let's talk about thinking now. आपने कभी सोचा है कि किस तरीके से हम दिन भर कुछ ना कुछ तो हमेशा ही सोचते रहते हैं. एम्प्टी माइंड इज कॉल्ड अ डेविल्स वर्कशॉप. इसलिए our mind is always occupied by some thought or the other. Now, what are those thoughts and why do we think and how does it help us in leading our own life? कई बार ये reasonable thoughts होते हैं, कई बार it's just random thoughts. At times these are irrational thoughts. If we think of it deliberately, let's just say, पूरे दिन में जब भी हम उठते हैं तो हमारे दिमाग में सबकॉन्शियसली ही ये आ जाता है कि आज हमें क्या क्या करना है. नाउ दैट वी हैव गॉट अप, किस समय हमें नहा के बाहर निकल जाना है, वेयर डू वी हैव टू गो. अगर हमें अपने वर्क प्लेस पर जाना है देन हाउ शुड आई गो. क्या अगर मुझे अपनी गाड़ी लेकर जानी है देन आई शुड एक्चुअली चेक द पेट्रोल. और अगर उसमें पेट्रोल कम है जो कि मुझे पहले से पता है देन आई नो कि मुझे पेट्रोल भराते हुए जाना है. नाउ आई ऑल्सो नो दैट आज मैं लेट उठी हूँ और आज मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है और आज ऐसा भी हो सकता है कि गाड़ी बीच में बंद हो जाए और अगर मैं पेट्रोल भराने जाती हूँ तो हो सकता है कि मैं लेट हो जाऊँ अपने ऑफिस के लिए. देन आई विल थिंक ऑफ वेज of an alternative way how to deal with the situation. I probably take a cab, I probably take a metro, I probably take an auto so as to reach in time और फिर शायद अगले दिन भरा लूँ मैं पेट्रोल. Why am I telling you this? I'm telling you this because in my mind I'm prioritizing my day out. Now what I'm thinking also is कि मैं वापस आते हुए I think I'll buy groceries, I have to pay the electricity bill. All those things, how is my day going to look like, probably is the first thought that my mind conceives right from the time that I'm waking up. So now obviously we are thinking all the time. These are the cognitive processes that is helping us live throughout the day. So now, did you at all notice that while I was trying to prioritize my day, trying to organize my thoughts and trying to build a perspective of probably having a look into how my day is going to shape up, I have also solved the problem. एक दिक्कत आई कि शायद मेरी गाड़ी में पेट्रोल कम है और मैं लेट भी हो रही हूँ. सो मैंने क्या किया, अपने थॉट्स को प्रोसेस करते करते इस प्रॉब्लम सॉल्विंग की भी एक टेक्निक निकाल ली. तो ये जो हमारे थॉट्स हैं दे आर नॉट ओनली रैंडम मोस्ट ऑफ द टाइम्स, दे आर ऑल्सो हैविंग सम मीनिंग इन आवर लाइफ इफ वी ट्राई टू बिल्ड अ पर्सपेक्टिव आउट ऑफ इट. That's why it is promoted that we should think positively. You must have heard it a lot कि अच्छा सोचो, positive सोचो, because as much as prevalent is positive thinking or positive thoughts, उतने ही prevalent negative thoughts हैं. All that depends on you is कि आप किस thought को किस direction में conquer करने देते हैं. Do you let negativity conquer or do you let positivity conquer? Even if you have negative thoughts, you should try and curb it and divert it towards doing something creative out of it, or doing something fruitful or productive out of it, or engaging into some kind of activity. Because if your mind is not doing the productive thinking, you're just wasting your time. कॉम्प्लेक्स थिंकिंग क्या होती है? यही होती है कि हम अपने थॉट से हर वक्त घिरे होते हैं. वी विल टॉक अबाउट इट थ्रू आउट द प्रोसेस. यू विल नो हाउ वी आर एक्चुअली बाउंड बाय द थिंकिंग दैट वी आर डूइंग एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल टाइम, विच कीप्स अस ऑक्यूपाइड ऑल द टाइम. थिंकिंग रिफर्स टू एग्जामिनिंग हाउ पीपल थिंक, हाउ एंड वाई वी थिंक द वे वी डू. हम ह्यूमन इंटरेक्शंस, हम खुद से इंटरेक्ट करते हैं इंटरनली, एक्सटर्नली. हमने पहले भी इन फैक्टर्स के बारे में बात की है, हाउ वी इंटरेक्ट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिमेंट्स जो कि हमारे थिंकिंग से जुड़े हुए हैं, जैसे इमोशंस, क्रिएटिविटी, लैंग्वेज, और जैसे कि हमने बात की प्रॉब्लम सॉल्विंग. दीज आर जस्ट अ फ्यू ऑफ देम विच हेल्प्स इन थिंकिंग, which are a byproduct of thinking also. Complexity and heterogeneity of our thoughts are fascinating. The higher mental process is responsible for reasoning, decision making, divergent thinking, and we've already talked about creative thinking, problem solving. To simplify these functions, our brain creates concepts. We need to group ideas, objects, people, or any other kind of element that comes to mind. सो नाउ इट्स अप टू यू. हमने पहले बात की थी कि हम परसीव करते हैं स्टिमुलस को, हम ऑर्गेनाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं. फिर हमने लर्निंग की बात की थी. अगर हम
थिंकिंग की बात करें तो जो थॉट्स हमारे दिमाग में इमर्ज हो रहे हैं किसी न किसी वजह से हो रहे हैं, थ्रू अ प्रीवियस स्टिमुलाई, थ्रू सम इंटरेक्शन, थ्रू सम अदर थिंग, जो कि थॉट प्रोसेस में हमारे पास आ रहे हैं। लर्निंग में हमने कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ अडेप्ट करके उसे सीखी। परसेप्शन में हमने परसेप्शन बनाया, उसने मदद की हमें कि कैसे हम अपनी इंटरप्रिटेशन को बिल्ड करें थ्रू परसेप्शन। थिंकिंग में हम बात कर रहे हैं कि जो थॉट्स हमारे दिमाग में ओरिजिनली या फिर नेचुरली या फिर किसी और फैक्टर के थ्रू, इंटरनल या एक्सटर्नल, उसके थ्रू इमर्ज हो रहे हैं, उसे हम कैसे फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव तरीके से ऑर्गेनाइज करें टू ऑगमेंट आर अंडरस्टैंडिंग। तो हम अगर उसे ग्रुप कर लें, ऑर्गेनाइज कर लें, जैसे कि हम अपने दिन को प्रायोरिटाइज कर रहे थे, हमने अपनी प्रायोरिटी चुनी, हमने अपने थॉट्स को सोचा कि ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, ऐसा भी है और वैसा भी है, लेकिन हम पहले ये करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करती हैं। लेट्स जस्ट से आपकी डेडलाइन है, आपका परसों एग्ज़ाम है और आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है। अब आपको आपकी एक फेवरेट मूवी भी रिलीज़ हुई है आज ही, योर फ्रेंड इज़ थ्रोइंग अ बर्थडे पार्टी ऑल्सो, और आपका परसों एग्ज़ाम भी है। नाउ दैट काइंड ऑफ थॉट्स दैट यू थिंक इज़ कि अगर मैं 1 घंटे के लिए चला भी जाऊँ बर्थडे पार्टी में तो क्या बुरा हो जाएगा। बट देन ऑन दी अदर हैंड, द अदर थॉट इज़ बिल्डिंग सम प्रेशर कि अरे कुछ भी नहीं पढ़ा है शायद परसों एग्जाम में, दिस इज़ द टाइम टू गिव आवर बेस्ट। दैट्स हाउ यू कीप डिसाइडिंग योर प्रायोरिटी। और ये आपको पहले ही थॉट ऑर्गेनाइज करने पे पता चलता है कि ये चीज़ें मुझे करनी बाकी है, सो शायद ये चीज़ें मैं बाद में भी कर सकती हूँ। आई विल लूज लेस, आई विल गेन मोर इन दिस। However, sometimes we try to be logical and often ignore how irrational we can be. Shortcuts एक important चीज़ है at times. Since humans are supposed to be street smart, now when you're thinking of so many things, you can add, एंड दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि अगर आपको लगता है कि ये शॉर्टकट क्रिएट करने से हमारा इतना सारा टाइम सेव हो जाता है, तो दिस इज़ हाउ आई विल डू। कि अगर मुझे 3 बार, एक बार मैं वापस घर आऊँ, फिर मैं जाऊँ इलेक्ट्रिसिटी बिल भरूँ, फिर मैं वापस आऊँ, फिर मैं जाके पेट्रोल भराऊँ, वाई नॉट वाइल going to my office or coming back, I take a slight detour, spend a little half an hour time, and that will save another 2 full hours that I will spend कि मैं घर आऊँ, फिर वापस जाऊँ, फिर आऊँ। तो मैंने अपने दिमाग में एक शॉर्टकट तैयार कर लिया कि कैसे मैं सारी चीज़ों को मैनेज कर लूँगी। And we now reach to the cognitive bias. वॉट आर कॉग्निटिव बायस? कई कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में बहुत सारे जब थॉट्स होते हैं, मान लीजिए हमने किसी एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू हमारे थॉट्स शेप अप हो रहे हैं, तो वो कैसे हो जाते हैं? जैसे कि मान लीजिए आप आज आप के बहुत सारे दोस्तों ने आपको फ़ोन किया और कहा कि हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। नाउ व्हाट यू डू इज़, शायद आपका अगर जाने का मन भी था, द प्रिवेलिंग थॉट बिकॉज ऑफ द बैंड वैगन इफेक्ट कि सब जा रहे हैं तो शायद सब नहीं जा रहे तो मुझे भी नहीं जाना चाहिए, इज़ नाउ द प्रेवलेंट वन इन योर माइंड, दैट इज़ अब मैं भी स्कूल नहीं जाऊँगा। या फिर कोई पर्टिकुलर मूवी आपका शायद इतना देखने का मन भी नहीं था, बट बिकॉज योर friends, all friends are full of praises for it, all they can talk about is the film, so now you're also intrigued और आपके दिमाग में उसका अलग परसेप्शन बनने लगता है। सो नाउ व्हाट वी टॉक अबाउट इज कि कॉग्निटिव बायस कैसे बनता है। कॉग्निटिव बायस ऐसे बनता है कि मान लीजिए कि कोई घटना हुई और जब उसका कोई वृत्तांत, उसका कोई डिटेल आपको सुनाता है, तो वो अपने पर्सपेक्टिव से सुनाता है ना। लेट्स जस्ट से देयर वर 25 पीपल विटनेसिंग द इवेंट, so all 25 of them will have their own version of the story, which might just differ slightly by a minute percentage or drastically, because it depends on how they परसीव द थिंग। प्रोबेबली कोई कहता है ए साइड की गलती थी, कोई कहता है बी साइड की गलती थी, कोई कहता था किसी की गलती नहीं थी, कोई कहता था दोनों की, ये डेलिबरेटली किया दोनों ने, दोनों भिड़ गए आपस में। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो नाउ वन प्रेवलेंट थॉट जो शायद आपने ज़्यादा सुन लिया या शायद जो आपसे कनेक्ट कर गया, वो थॉट आपका भी अपना थॉट बन जाएगा। एट टाइम्स ये भी होता है कि हमारा ह्यूमन माइंड अक्सर नेगेटिव चीज़ों को जल्दी ग्रास्प कर पाता है और शायद पॉजिटिव चीज़ों पे तो ध्यान नहीं जाता। लेट्स जस्ट से आई टेल यू फॉर एन एग्जांपल कि my neighbor's daughter has been a good scorer. She's been an average student though, but eventually she was very hardworking and she became a good scorer. Now she's been winning medals all over. But then let's just say she got into drugs, and the problem
it was that she got too much addicted to it, and that she lost all her accolades and achievements. And now what happens is you're more intrigued to know how that drug story happened, how it ruined her life, rather than how were the elements that were supporting and shaping her life. Sounds less interesting than this. And this has been noticed several times while the news items are covered. That's why we end up seeing a lot of negative items on the news also, just to gain the TRPs. Now that might be a cheap tactic by, probably, let's just say, some websites who try to gain attention through this. Although positive news has its equal importance, just that the thought prevailing can differ with it. So now, if that happens, then also cognitive bias is formed. That's why it is asserted again and again that one should only focus on the positive aspects of things, and one should always try to see the glass as half full, not half empty. So that calls for positivism, positive thought ideology. अगर कॉग्निटिव बायस प्रेवलेंट रहता है तो उससे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन होता है, यानी कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस आर नेगेटिव एंड इरेशनल थॉट्स, जैसे कि हमें अक्सर अजीब अजीब ख्याल आते हैं, लाइक जैसे इसमें एग्जांपल दिया है, द वर्ल्ड हेट्स मी. Now the world definitely doesn't hate them, but then उनका negative process इतना ज़्यादा है. Now that can lead to depression if you keep asserting and keep thinking about the same thing which is negative and irrational, which does not have, let's just say, even if somebody feels unloved, there are several factors to think about it. Let's just say maybe one or two people are making him feel miserable about himself, or it might be his own self confidence, or it might be that he is not being able to perform the way he should be, and he is just undermined, or he's underestimating his own performance, or he's facing a certain problem in performing his work which is lowering his self confidence. Now all these things, if ignored, all that remains is the world hates me. So now if that happens and it is asserted again and again, one might be slipped into depression altogether, or one might have a totally negative outlook on life. So now that has to be addressed and treated as soon as possible. That's why, once again, thoughts are very very important. They have to be very very productive. They have to be controlled. They have to be regulated.